Hello and welcome. Welcome to the seventh learning session of chapter number 8 of Science 1, which is metallurgy. So far in this chapter, these are the topics that we have seen so far. We looked at physical and chemical properties of metals and non-metals, and we looked at ionic compounds and its properties. Then we started looking at basic principles of metallurgy, which were concentration of ores, extraction of metals, and refining of metals. Out of these three techniques or three principles, we had looked at two. We completed concentration of ores, which was in which we saw separation based on gravitation, magnetic separation, froth flotation, and leaching methods, right? And in the last learning session, we had started to look at extraction of metals. So in extraction of metals, we had completed extraction of highly reactive metals, and we had seen the extraction of aluminium metal. The remaining part we're going to cover in today's learning session. Okay, so in today's learning session, we'll look at extraction of moderately and less reactive metals. We'll see what is refining of metals. It's a very small topic. We'll start looking at corrosion of metals, and we'll discuss a few end of chapter questions at the end of the learning session. Okay, so all these topics we are going to cover in today's learning session. These are the learning objectives for today. The first learning objective is students will be able to explain extraction of moderately and less reactive metals using appropriate chemical reactions. The second learning objective is going to be students will be able to explain corrosion with examples. Okay, because this is a chemistry learning session, I'm going to remind you all to kindly memorize this table, or else any chemistry chapter is going to seem difficult for you all. Okay, let us begin with an end of chapter question based on something that we learned in yesterday's class. Okay, so there's a give reason which says anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina. So electrolysis of alumina we had seen in the last learning session, right? What is electrolysis of alumina? Alumina is nothing but aluminium oxide. Okay, Al2O3. So यहाँ पे aluminium oxide रख देते हैं, और जैसे तुम स्विच चालू करोगे aluminium कैथोड की तरफ जाएगा, राइट? ये जो ग्राफाइट का लाइनिंग है स्टील टैंक के अंदर की तरफ, उसकी तरफ एल्यूमिनियम चल जाएगा. तो एल्यूमिनियम चला गया, एल्यूमिनियम में से बचा क्या? ऑक्सीजन, Al2O3. Al चला गया, अभी O विच इज ऑक्सीजन, दैट विल गो टुवर्ड्स एनोड. ये जो येलो कलर में ग्राफाइट के रॉड्स है उसकी तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा. बट these graphite rods are made up of carbon, right? So कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो ग्राफाइट के रॉड्स है वो खराब होने वाले हैं. एनोड रॉड्स विल get depleted after some time. So इसलिए उसको बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो खराब होते रहता है. So now you know the answer. Now that you know the answer, can you write the answer in 4 simple, easy to understand points in a logical way? That you have to practice now. Okay, and this question was asked in July 2019 board exam for 3 marks, not even 2. Generally give reasons 2 mark के लिए पूछते, but ये 3 mark के लिए पूछा था. Okay, so just check whether now that you know the answer, can you write the answer in 4 simple logical points. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and write your answers. Okay, 5 seconds are up. I hope you have tried to write the answer by yourself. Okay, let us discuss the answer now. During the electrolysis of alumina, oxygen gas is liberated at the anode. That's my first point. Next, oxygen reacts with graphite anode to form carbon dioxide, right? So कैसे logically जा रहे हैं? पहले तुम बोलो कि एनोड की तरफ जाता क्या है. ओके, सो एनोड की तरफ क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है. दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन जो जाता है वहां ग्राफाइट के साथ, जो कार्बन से बना होता है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. Thus the mass of graphite rod decreases over time. ओके, क्योंकि ऑक्सीजन उस ग्राफाइट में कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जा रहा है, तो जो ग्राफाइट में कार्बन का मास है वो कम होते जाएगा. ओके, धीरे धीरे उसका जो मास है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके गायब हो रहा है, इसलिए उसका मास कम होते जाएगा. एंड योर फाइनल पॉइंट इज योर कंक्लूजन. ओके, हेंस गिव मी अ मिनट. Hence anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina. बस hence लिखो, कॉमा डाल दो और क्वेश्चन को वैसे के वैसे कॉपी कर लो. So in 4 simple points I've explained the entire answer. Okay, let us move ahead. There are some can you recall type of questions on page number 104. Again I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to write the answers by yourself. The first question you should definitely be able to answer by yourself. The second question, if you don't know the answer, it's okay. But first question का तो आंसर आ जाना चाहिए खुद से. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and try to answer them by yourself. Okay.
Okay, 5 seconds are up. I hope you're ready with your answers. Let us discuss now. What are moderately reactive metals? Moderately मतलब क्या? Moderately यानी medium, ना ज्यादा ना कम. That is medium or moderately. So moderately reactive metals क्या होते हैं? So the metals which lie in the middle of the reactivity series, such as zinc, iron, tin, lead, all of these are moderately reactive metals. So if you remember, this is the reactivity series, right? Top पे जो होते हैं वो ज्यादा reactive होते हैं, बहुत easily reaction करते हैं. नीचे जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं. तो जो बीच में होंगे जिंक, आयरन, टिन, लेड, ओके, तो जो बीच में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है. दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू से. एंड दिस this is reactivity series of metals. It's better if you by heart this. Okay, it will make things much easier for you if you by heart this table. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है. सेकंड क्वेश्चन, इन विच फॉर्म डू द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अकर इन नेचर? फॉर एग्जांपल, नेचर में जिंक प्योर फॉर्म में होगा क्या? किसी रास्ते में चलते जा रहे हैं, नीचे जिंक का एक पत्थर है, थोड़ा और चले गए तो नीचे टिन का एक पत्थर है. ऐसा नहीं होगा, फ्री नहीं होगा. क्यों नहीं फ्री होगा? क्योंकि वो बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं. इजीली नहीं, बट मीडियम रिएक्टिव है, राइट? तो वो भी किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर किसी ना किसी फॉर्म में होगा. तो कौन से फॉर्म में होगा ये पूछा था. सो द आंसर इज द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जनरली अकर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. या तो सल्फाइड के साथ कंबाइंड मिलेगा तुम्हें नेचर में, या फिर कार्बोनेट के साथ कंबाइंड मिलेगा नेचर में. तो अगर हमें उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो हमें किसी भी तरीके से उस सल्फाइड और कार्बोनेट को निकालना पड़ेगा, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. ओके, so let us start with extraction of moderately reactive metals. It is easier to obtain metals from their oxides rather than sulfides or carbonate. तो अगर जिंक सल्फाइड होगा या फिर जिंक कार्बोनेट होगा, उसमें से जिंक को निकालना मुश्किल हो जाएगा. बट जिंक ऑक्साइड होगा, उसमें से जिंक को निकालना इजी होता है. ओके, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. ऑक्साइड में से मेटल को निकालना इजी होता है, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट में से मेटल को निकालना उतना इजी नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे, पहले सल्फाइड को, अगर सल्फाइड होगा तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, अगर कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, फिर मेटल निकालना इजी हो जाता है. सो फर्स्ट स्टेप फॉर moderately reactive metals is going to be either if it is a sulfide, converted in oxide. Even if it is carbonate, convert that in oxide. That is going to be our first step. Therefore, sulfide ores are strongly heated in air to transform them into oxides. This process is called roasting. तो अगर सल्फाइड होगा, सल्फाइड को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? एयर में उसको हीट करना है. ओके, हवा आजू बाजू प्रेजेंट होगा तभी उसको अच्छे से हीट करना है. इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं. ओके, एंड यू कैन सी द रिएक्शन ओवर हियर. सो सल्फाइड, फायरवर्क्स हैव बिगन, मींस इट्स न्यू ईयर. कितना बज रहा है? या इट्स 12. सो न्यू ईयर has begun. Happy New Year to every one of you all. I hope this year is much better than the last one. With that, let's continue. Okay, so I was saying, अगर सल्फाइड होगा, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? उसको एयर में स्ट्रांगली हीट करना है, विच इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. यहाँ पे इक्वेशन दिया, सल्फाइड यानी S होगा, राइट? इन दैट ऑरेंज टेबल दैट यू हैव बाय हार्टेड, सल्फाइड इज S. तो जिंक सल्फाइड यानी ZnS. ओके, तो उसको एयर के प्रेजेंस में अगर उसको हम हीट कर रहे हैं, तो एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. इन एवरी कंबशन रिएक्शन क्या करते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा. तो व्हेन यू हीट ZnS which is zinc sulfide in air, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एयर में जो प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट विल यू गेट? जिंक ऑक्साइड, एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. तो तुम्हें जिंक ऑक्साइड मिल गया. एक बार ऑक्साइड मिल गया तो उसमें से मेटल निकालना इजी होता है. ये किसके लिए था? सल्फाइड के लिए था. कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे फिर? Carbonate ores are strongly heated in limited supply of air, okay, to transform them in oxides. रोस्टिंग में एयर के प्रेजेंस में उसको हीट कर दे ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे. बट अगर कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट को हम एयर के प्रेजेंस में नहीं हीट करेंगे, उसके ऊपर कुछ रख देंगे तो ज्यादा एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा. सो व्हाट विल बी द रिएक्शन? दिस प्रोसेस कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. ओके, सो रिएक्शन क्या होगा? सी दिस इज ZnCO3 इज कार्बोनेट. ओके, तो दिस इज जिंक कार्बोनेट. तो जिंक कार्बोनेट को लिमिटेड सप्लाई, ज्यादा एयर सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया. देखो, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन नहीं है. सो लिमिटेड सप्लाई में है, ज्यादा एयर आजू बाजू नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे. तो जिंक कार्बोनेट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन अप. ओके, सो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए
फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज कन्वर्ट सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स. ओके, अगर सल्फाइड होगा तो सल्फाइड को तुम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? स्ट्रांगली हीट इन एयर, उसको हम रोस्टिंग बोलेंगे. अगर कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट को भी तुम्हें स्ट्रांगली हीट करना है, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ हीट, ज्यादा सप्लाई नहीं होना चाहिए हीट, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, तो ऑक्साइड मिल जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. ओके, नेक्स्ट, the zinc oxide so obtained is reduced to zinc by using suitable reductant such as carbon. एक बार ऑक्साइड मिल गया तो ऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा. व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन के बहुत सारे डेफिनेशंस है. वन डेफिनेशन इज gaining electrons, that is one definition of reduction. Second definition, gaining hydrogen, that's the second definition. Third definition is losing oxygen. So losing oxygen is also called as reduction reaction. So ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन को निकालना है, so that is reduction, right? So इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. कैसे रिड्यूस करोगे? यूजिंग कार्बन. ओके, सो ZnO प्लस कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा और तुम्हें सिर्फ जिंक मिल जाएगा. और ये क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज्ड. सो यहाँ पे हमने कार्बन यूज किया था, राइट, टू रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द मेटल. But apart from carbon, reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are also used as reducing agent for the reduction of metal oxide to obtain the metal. यहाँ पे ये रिडक्शन रिएक्शन है, राइट? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निकल जाता है. रिडक्शन रिएक्शन है तो जिसके वजह से रिडक्शन रिएक्शन होता है उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं. कार्बन की वजह से रिडक्शन हुआ, राइट? सो यहाँ पे कार्बन तुम्हारा रिडक्टेंट है. सो रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं. सो सिर्फ कार्बन यूज करने की जरूरत नहीं. कार्बन के पे तुम सोडियम भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम भी यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो. सेम रिजल्ट मिलता है. वो जो ऑक्साइड है वो निकल जाएगा, सिर्फ मेटल मिलेगा. ओके, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स डिस्प्लेस अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. ये जो एलिमेंट्स है हाईली रिएक्टिव है. सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑल थ्री आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो इसको अगर तुम किसी ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो क्या करेगा? ऑक्साइड को निकाल देगा. मेटल दीज मेटल्स डिस्प्लेस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो मीडियम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा यानी निकाल देगा. इसलिए हम कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हैं कार्बन की जगह पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज इग्नाइटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा दो तो ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास चले जाएगा, तो यू गेट Al2O3. ओके, और ये मैग्नीज अकेला बच जाएगा. सो क्या हो गया? ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इसने जो मीडियम रिएक्टिव मेटल को अकेला कर दिया, ऑक्सीजन को अपने पास लेके. सो दैट्स द फंडा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, दिस आई हैव जस्ट रिपीटेड द पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड. ओके, सो ये पॉइंट हमने प्रीवियस स्लाइड में कवर किया था. इट्स द सेम इक्वेशन. The heat evolved in the above reaction is so large that the metal is formed in the molten state. तो इस रिएक्शन की वजह से इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि जो मैग्नीज प्रोड्यूस हो जाएगा, प्योर मैग्नीज जो तुम्हें मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में होगा, मेल्टेड स्टेट में होगा. मेल्टेड स्टेट यानी मोल्टन स्टेट. ओके, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. Another similar example is Thermite reaction. Notice Thermite reaction. Iron oxide reacts with aluminium to form iron and aluminium oxide. Same फंडा यहाँ पे भी है. मीडियम रिएक्टिव मेटल है आयन, Fe, राइट? उसको तुम हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो, एल्यूमिनियम. सो क्या हो जाएगा? ये जो ऑक्सीजन ये एल्यूमिनियम ले लेगा और तुम्हारा जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, वो अकेला हो जाएगा एंड सेम हीट प्रोड्यूस करेगा वो. ओके, so there's a question, who is oxidized and who is reduced in the two equations. Okay, इस equation में किसका oxidation हुआ है, किसका reduction हुआ है? So let us check. Okay, which definition are we going to use? We're going to use the definition of oxygen. Oxygen combine हो गया तो oxidation है, oxygen चला गया तो reduction है. So here if you see मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज बन गया, बराबर? तो ऑक्सीजन चला गया यानी रिडक्शन. सो मैग्नीज डाइऑक्साइड was reduced. Okay, next एल्यूमिनियम यहाँ पे अकेला था बट यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो एल्यूमिनियम हैज गेन्ड ऑक्सीजन, सो विल से एल्यूमिनियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड. सो मैग्नीज डाइऑक्साइड हैज रिड्यूस्ड एंड एल्यूमिनियम हैज ऑक्सीडाइज्ड. सिमिलरली इसके लिए तुम खुद से कर सकते हो क्या, जैसे मैंने ऊपर वाले के लिए किया. कैन यू आइडेंटिफाई कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है इन दिस इक्वेशन? आई विल वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू डू दैट. ओके, Okay, 5 seconds are up. I hope you have identified कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ इस सेकंड
इक्वेशन में। सो यहाँ पे देखो Fe2O3 क्या बन गया, Fe बन गया, यानी ऑक्सीजन चला गया। जब भी ऑक्सीजन चला जाता है, whenever there's a loss of oxygen, we called it as reduction. So FeO2 undergoes reduction, iron oxide undergoes reduction. एल्यूमिनियम यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है, सो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। whenever you gain oxygen, it is oxidation, right? So iron oxide is reduced, aluminum is oxidized. Okay, you should be able to identify कौन oxidize हो रहा है, कौन reduce हो रहा है. This we had learned in chapter number 3, chemical reactions and equations. Okay, so we are done with moderately reactive metals. इसमें दो मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर सल्फाइड और कार्बोनेट है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, सल्फाइड होगा तो तुम रोस्टिंग करोगे, एयर में उसको हीट कर दोगे, और अगर कार्बोनेट होगा तो तुम लिमिटेड सप्लाई में हीट करोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और उसको कैल्सिनेशन बोलोगे। एक बार तुम्हारा सल्फाइड और कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उसको तुम रिड्यूस कर दोगे, कार्बन यूज कर सकते हो या फिर कोई भी दूसरा हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। सो ये दो स्टेप में तुम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को प्योर फॉर्म में लेके आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स. So the metals at the bottom of the reactivity series of I'm going to read that sentence again. The metals at the bottom of the reactivity series of metals are less reactive. Okay, reactivity series का जो हमारा टेबल है उसके नीचे सबसे बॉटम में जो एलिमेंट्स है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्ट करते हैं. ओके, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. That is why they are found in free state in nature. For example, gold, silver, platinum. Free state में मिलता मतलब क्या, ऐसा हो सकता है if you're super lucky and if you're walking in the correct place on earth, ऐसा हो सकता है तुम ऐसे ही चल रहे हो और चलते चलते तुम्हें एक गोल्ड का टुकड़ा मिल गया नीचे, या फिर तुम्हें प्लैटिनम का टुकड़ा मिल गया नीचे. इट्स वेरी मच पॉसिबल, उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत कम रिएक्ट करते हैं, प्योर फॉर्म में तुम्हें नेचर में मिल सकते हैं. ओके, आई टॉक्ड अबाउट द गोल्ड रश इन अमेरिका, राइट, जहाँ पे रिवर्स के आजू बाजू एक एरिया में गोल्ड मिल रहा था बहुत लोगों को, तो बहुत लोग वहां पे चले गए, गोल्ड जमा करना शुरू कर दिए. इफ यू वेरी लकी बड़ा पीस मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं. ओके, तो तुम्हें जमा करने पड़ते हैं, फिर उसको मेल्ट करके एक गोल्ड का पीस बनाते हैं. बट ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ये तुम्हें प्योर फॉर्म में फ्री स्टेट में मिल सकता है नेचर में, इफ यू आर सुपर लकी. तो अगली बार जब भी तुम मिट्टी में खेलने जाओगे, just look out for gold, silver and platinum pieces in the sand. Okay, next, the reserves of copper in free state are very few. So gold, silver, platinum तो तुम्हें free state में मिल जाएगा नेचर में, but copper नहीं मिलेगा. Okay, copper बीच में actually less reactive भी नहीं बोल सकते और moderately reactive भी नहीं बोल सकते. moderately and less reactive के कहीं पे तो बीच में आता है. तो कॉपर फ्री स्टेट में नहीं मिलता. कॉपर जनरली CuS which is कॉपर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है. ओके, सो अगर कॉपर सल्फाइड में से अगर तुम्हें कॉपर निकालना है तो तुम क्या करोगे, बस एयर में हीट करना होता है. सो कॉपर सल्फाइड को एक बार एयर में हीट कर दो, विच इज मतलब एयर में हीट करोगे मतलब क्या, एयर में जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, तुम्हें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा. एक बार ऑक्साइड मिल गया तो उसमें से मेटल निकालना ईजी होता है. सो ऑक्साइड वापस जो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा उसको वापस कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा दो, तुम्हें कॉपर मिल जाएगा. ओके, दोनों रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. सो कॉपर के लिए वेरी सिंपल टेक्निक, उसको एयर में हीट कर लो और तुम्हें कॉपर मिल जाएगा. सो दैट्स योर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लेस रिएक्टिव मेटल्स. ओके, लास्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ओके, रिफाइनिंग का मतलब क्या है, विल सी. मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर. ये जो रिडक्शन करके हम लोग को मेटल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल पहले ऑक्साइड बना, ऑक्साइड में से रिड्यूस करके तुम्हें फिर मेटल मिलेगा, बराबर. तो उसमें से जो मेटल मिलता है दैट इज नॉट वेरी प्योर, उसमें काफी इंप्यूरिटीज होती है. द इंप्यूरिटीज नीड टू बी सेपरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल. उस इंप्यूरिटीज को निकालोगे तभी तुम्हें प्योर मेटल मिलेगा. तो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस मेथड तुम्हें याद है, राइट, सोडियम क्लोराइड का हमने देखा था, फिर एल्यूमिना के लिए देखा था हमने. सेम प्रोसेस हम इनके लिए भी करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा फ्रॉम इम्प्योर मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. बस 3 पॉइंट्स दिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. There are some can you recall type of question on page number 106 related to corrosion. Okay, so the second question you all can ignore for now, we'll see it together, but can you read and try to answer the first question at least. First question खुद से तुम आंसर कर सकते हो because corrosion we have seen in our previous grades also. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video
and try to write the answer to the first question. What is meant by corrosion? Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you are ready with your answer for corrosion. So let us see the answers now. So what is meant by corrosion? The process of slow degradation of the metals. Degradation का मतलब क्या? खराब होना. Okay, destroy होना, destruction होना. तो degradation यानी खराब होना. So the slow process of degradation of metals. क्यों होगा degrade? Due to attack of atmospheric gases, moisture, acids, etc. on the surface of the metals is called as corrosion. तो कोई भी तुम मेटल ले लो, मेटल के आजू बाजू एयर होगा, एयर में अलग अलग गैसेस होंगे, एयर में मॉइस्चर होगा, कोई ना कोई एसिड्स आ सकते हैं. इन सब के अटैक की वजह से जो सरफेस पे होता है मेटल के, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है. ओके, डिग्रेड होने लगता है, खराब होने लगता है. उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज, लेट मी गो बैक. हैव यू सीन द फॉलोइंग थिंग्स एंड इफ यस देन एक्सप्लेन. Old iron bars of buildings, copper vessels not clean for long time, silver ornaments or idols. Idols यानी मूर्ति. Okay, so idols exposed to air for a long time. Old abandoned vehicles, abandoned यानी छोड़ दिया, बहुत टाइम से यूज नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगा, किसी गाड़ी वगैरह, गाड़ी बाइक को वगैरह. vehicles fit to be thrown away. तो ऐसा क्यों होता है? तुमने देखा है क्या कि अगर कोई लोखंड का कोई सलिया होगा या फिर लोखंड का कोई तुम्हारा ग्रिल होगा खिड़की का, बहुत पुराने बिल्डिंग्स का वो खराब हो गया होता है. कॉपर वेसल, पित्तल का कोई तुम्हारे पास वेसल होगा, भांडा होगा, भांडी होगी कॉपर से बनी हुई, और उसको बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया, वो भी उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाएगा. सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सो चांदी के जो कुछ भी तुम्हारे गहने होंगे, बहुत टाइम तक यूज नहीं किया तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं. मूर्ति भी सिल्वर की होगी तो चांदी की होगी तो ब्लैक कलर का हो जाता है. और व्हीकल्स में भी एक अलग जंग लग जाता है. तो ये सब तुमने ऑब्जर्व किया कि नहीं? And if yes, then explain. ये क्वेश्चन था. I know most of you all have seen this, so hence I did not want you to answer that. But here are a few points. Okay. Due to rusting यानी जंग पकड़ना. Okay. Due to rusting, old iron bars of building get damaged and brown coating develops on them. Okay. So अगर पुरानी बिल्डिंग के गेट वगैरह को तुम देखोगे तो उसपे जंग पकड़ जाता है और एक ब्राउन कलर का कोटिंग होता है उनके ऊपर. ओके, ब्राउन कलर का लेयर होता है. If copper vessels are not cleaned for a long time, greenish layer is formed on the surface. Next, when silver ornaments are exposed to the air, they turn blackish. And last point, abandoned vehicles get damaged over time due to corrosion. So ये सब तुम लोग ने already observe किया होगा अपने surrounding में. Again, you have to think about these things now. Okay, तुमने observe कर लिया तुम्हारे surroundings में, अब इसके बारे में सोचना है. Why do silver articles turn blackish? While copper vessels turn greenish on keeping in air for a long time. चांदी के जो आर्टिकल्स है वो काले कलर के हो जाते हैं, और कॉपर विच आई थिंक इज पित्तल के जो वेसल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं अगर वो तुम उसको हवा में बहुत टाइम के लिए रखोगे. तो ऐसा क्यों होता है? दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू प्योर गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑलवेज ग्लिटर? वो हमेशा चमकते क्यों रहते हैं? ग्लिटर यानी चमकना. ओके, so why do pure gold and platinum always glitter? Again, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to write the answer by yourself. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and have written the answer. Let us discuss the answer now. So why do silver articles turn blackish while copper vessels turn greenish? If copper vessels are kept in the air for a long time, greenish layer of copper carbonate is formed on its surface. तो copper vessel green color का क्यों होता है? क्योंकि copper carbonate आ जाता है उसके surface पे. And the second point, silver ornaments are exposed to the air for a long time, then they turn blackish due to formation of layer of silver sulfide. Okay, यहाँ पे मैंने तुम लिखा है, तुम नहीं है, वो turn है. Okay, TUR है, यहाँ पे एक typing mistake हुआ. So they turn blackish due to formation of the layer of silver sulfide. Okay, so copper green color का हो जाता है because of copper carbonate, and silver black color का हो जाता है because of silver sulfide. That's your answer to the first question. Second question का answer, why do pure gold and platinum always glitter? Gold and platinum are noble metals. Noble यानी बहुत अच्छे, इंग्लिश में noble यानी बहुत अच्छे. Okay, so noble metals है, उनको noble metals क्यों बोलते हैं? Because they do not react with air or moisture. एयर के साथ, हवा के साथ, या फिर हवा में जो पानी का कंटेंट होता है मॉइस्चर, उसके अंदर रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए उसको नोबल मेटल्स बोलते हैं. हेंस प्योर गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑलवेज ग्लिटर.
वो लोग के ऊपर कोई ब्लैक कलर का या फिर कोई ग्रीन कलर का लेयर या फिर कोई ब्राउन कलर का लेयर नहीं आएगा, वो हमेशा चमकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. So let us look at corrosion of metals now. That's your last topic for the day. Not last, second last. Or today, end of chapter questions bache hai, right? So this is your second last topic for the day. Rusting of iron articles causes large financial loss. Okay, अगर तुम कुछ लोखंड का खरीद रहे हो तो कुछ साल के बाद उसके ऊपर जंग तो लगना ही है, तो पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं अगर बहुत जल्दी जंग लग गया तो. और ये तो हमारे हाउस होल्ड के बारे में. अगर समझो कोई ब्रिज है तुम्हारे पास और तुमने पूरा का पूरा ब्रिज आयरन से बनाया, ओके, और जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे पानी बहता है वो भी सॉल्ट वाटर, ओके, नमक वाला पानी, सी वाटर अगर उसमें जा रहा है तो बहुत इजीली उसमें जंग लगता है. तो अगर तुमने ऐसा ब्रिज बना दिया आयरन से जहाँ पे बहुत एयर होता है, बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत इजीली जंग लग जाएगा, उसको टूट जाएगा वो, लोग भी मर सकते हैं और पैसे सब वेस्ट हो जाएंगे. ओके, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग मतलब जंग लगना. Thus corrosion of iron, that is rusting, is a big problem. इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है. Iron reacts with moist air and a deposit of reddish substance Fe2O3.H2O is formed on it. So here you can see एक रेड कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है, राइट. और इफ यू सी ए चेन के ऊपर फॉर्म हुआ है, अगर ये चेन किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जोड़े रख रहा है और ये अगर समझो रस्ट हो गया तो वो वीक हो जाता है. अगर वो वीक हो गया तो बहुत इजीली टूट जाता है. सो इससे काफी बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं अगर तुम आयरन यूज कर रहे हो. ओके, बट फिर भी लोग आयरन यूज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि सस्ता है, राइट. तो अगर आयरन की जगह पे तुम स्टेनलेस स्टील यूज करोगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा. इसलिए पीपल स्टिल यूज आयरन, बट आयरन अगर यूज कर रहे हो तो उसको हमेशा चेक करना पड़ता है कि रस्ट नहीं हो रहा है ना. अगर रस्ट हो रहा है और वो किसी इंपॉर्टेंट चीज को जोड़े रख रहा है then it can be very dangerous. वो क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर Fe2O3.H2O फॉर्म हो जाता है और इसको ही हम रस्ट बोलते हैं. जंग जो है that is nothing but Fe2O3.H2O. Okay, that is about iron. Next, about copper. So carbon dioxide in moist air reacts with the surface of the copper vessel. कोई भी तुम्हारा कॉपर का वेसल होगा वो किसके साथ रिएक्ट करता है? कॉपर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. कॉपर loses its luster. Luster यानी क्या याद है? We have seen that one of the properties of metal is it is lustrous. Lustrous यानी चमक. किसी भी मेटल चीज के पास चमक होती है. सो कॉपर का जो चमक होता है वो चले जाता है. क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट. ओके, कार्बोनेट इज CO3. सो कॉपर कार्बोनेट इज CuCO3. तो कॉपर के ऊपर CuCO3 विच इज कॉपर कार्बोनेट एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है. इसकी वजह से उसका जो लस्टर है, चमक है, वो निकल जाता है. उसका एग्जाम्पल, द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी. तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज मेड फ्रॉम कॉपर. ओके, बट वो अभी ग्रीन कलर का हो गया 300 साल के बाद. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर आ चुका है. ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? पैटिनेशन ऑफ कॉपर. आयरन के ऊपर जब रस्ट फॉर्म होता है तब उसको रस्टिंग बोलते हैं. कॉपर के ऊपर जब ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है तब उसको हम पैटिनेशन ऑफ कॉपर बोलते हैं. ओके, सो दैट वाज अबाउट कॉपर. नेक्स्ट, सिल्वर. On exposure to air, silver articles turn blackish after some time. तो कोई भी तुम्हारी चांदी की चीज होगी बहुत टाइम के बाद वो थोड़ा काला पड़ने लग जाएगा. दिस इज बिकॉज द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S is formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in the air. So एयर में हमारे थोड़ा सा क्वांटिटी होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का. तो हमारा जो कुछ भी सिल्वर का आर्टिकल होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है. इसलिए ब्लैक कलर का दिखने लगता है. कोई भी सिल्वर की चीज होगी, कोई मूर्ति बनाएंगे, जनरली मेनी पीपल मेक आइडल्स, मूर्ति बना के रखते अपने गॉड्स के फ्रॉम सिल्वर. अगर गोल्ड अफोर्डिंग, गोल्ड सबको गोल्ड से ही बनाना होता है, बट अगर उतने पैसे नहीं होंगे तो द चीपर ऑप्शन इज जनरली द सिल्वर, राइट. तो सिल्वर से बनाते हैं, चांदी से बनाते हैं, बट वो बहुत थोड़े से टाइम के बाद ब्लैक कलर का दिखना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ silver sulfide forming. Okay, so that was about silver. And the last one is aluminium. By oxidation of aluminium, a thin layer of aluminium oxide forms on it. तो ये ऐसा ब्लैक कलर का दिख जाता है, aluminium oxide. Okay, so that's about aluminium. So that was all about corrosion of metals. In our next learning session we'll see how do we prevent corrosion of metals. metals का corrosion नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. That is also studied under metallurgy. Okay, so our last topic for this chapter is going to be how do you prevent corrosion. corrosion होने से बचाना कैसे है किसी भी मेटल को. Okay, that we'll see in our next learning session.
Let's now, before we end this chapter, quickly discuss these 4 end of chapter questions. Draw neat label diagram. I love this question because इसमें मेरे को कुछ मेहनत नहीं करना है, मैं तुम लोग को बस डायग्राम बताऊंगा, तो वो डायग्राम देख के कॉपी करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है. ओके, so these are the 4 questions. The first one is magnetic separation method. तो इसका डायग्राम तुम्हें अपने नोटबुक में कॉपी करना है. मेक श्योर यू आर कॉपिंग वेरी नीट डायग्राम्स इन योर नोटबुक एंड मेक श्योर यू आर ऑलवेज लेबलिंग करेक्टली. ये जितने भी लेबलिंग किए हैं उसको अच्छे से नीटली तुम्हें लेबल करना है अपने नोटबुक में. ओके, एटलीस्ट एक बार जब तुम अपनी नोटबुक में ये सब डायग्राम्स बनाओगे, एक बार तो प्रैक्टिस हो जाएगा. Again, whenever you write your prelims, whenever you write your exams, practice one more time important diagrams, and that practice will be enough. Okay, so this is magnetic separation method wala diagram. Pause the video and copy it in your notebook, or you can just refer your textbook. ये सारे diagrams मैंने textbook से ही लिए. Next is froth flotation method. This is the diagram. It looks very complicated, but it's not that complicated. Okay, इतना ऐसा यहाँ पे देखो शेडिंग वगैरह किया है, यहाँ पे शेडिंग किया है, शेडिंग वेडिंग करने की जरूरत नहीं है. बेसिक तुम्हारा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए और लेबलिंग सही होना चाहिए. ओके, सो दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन. दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. ये तो तुम्हें करना ही है बाय हार्ट, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में जितने भी डायग्राम है सब अच्छे से करना है. तो ये तो डेफिनेटली तुम्हें करना ही है, वो उस क्वेश्चन के लिए भी काम में आएगा. ओके, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. अगेन, labeling correctly is very important in this diagram. And finally, hydraulic separation method. ये तो काफी easy है. Okay, बहुत सबसे easy diagram यही है. So make sure you're copying all these diagrams in your notebook from this video. Pause करके या फिर you can copy it from your textbook. And whenever you're submitting your notes, make sure you're submitting with all these diagrams in it. Okay. So that is it. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me how do we extract moderately and less reactive metals by giving examples in the form of chemical reactions? If yes, then you have achieved today's first learning session. Second, can you explain me corrosion with examples? For example, iron rust की होता है, iron के ऊपर कौन सा लेयर फॉर्म होता है? कॉपर रस्ट की होता है, कॉपर के ऊपर कौन सा लेयर फॉर्म होता है, उसका कलर क्या होता है? सिल्वर क्यों रस्ट होता है, उसके ऊपर कौन सा लेयर फॉर्म होता है, उसका कलर क्या होता है? If you can answer these questions, then you have achieved today's second learning objective. Okay, so that was it for today's learning session. It is also New Year. It is almost 25 minutes into the New Year. So have a happy New Year. I hope this next New Year is not as bad as our previous year. And you have last 2-3 months remaining for a board exam. So make sure you're starting your new year on a high note by working very, very hard. And once you start this year very, very hard, and if you get into a good college after your grade 10, you're going to feel much better by the end of the next year. दिसंबर 2021 में तुम बहुत ज्यादा खुश होने चाहिए. ओके, और अगर दिसंबर 2021 में तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना है तो जनवरी 2021 में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग lots of efforts. You're working very, very hard in the last 1 or 2 months remaining of your board exams, and I'm sure if you work very hard in the last 2-3 months, you're going to score good marks, not just pass. I'm very positive that you'll score good marks and go into a good college of your choice. Okay, so that was it for this learning session. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.